ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے افغان طالبان کے 4 ڈرون بلوچستان سرحد پر مار گرائے گئے۔ ہر اشتعال انگیزی کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق افغان طالبان رجیم نے 30 جون کو بلوچستان کی سرحد پر 4 ڈرون بھیجے جنہیں سیکیورٹی فورسز نے کامیابی سے مار گرایا۔ ISPR نے سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سرپرستی فوری ترک کرے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت ہر اشتعال انگیزی اور ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والی ہر کارروائی کو ناکام بناتے ہوئے خود مختاری پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاک افواج ملکی سرحدوں کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ثانیہ کانہ میں جاں بحق اور زخمی بچوں کے والدین کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے مالی امداد کا اعلان۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک کے مطابق جاں بحق بچوں کے والدین کو 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ حادثے میں زخمی ہونے والے بچوں کے والدین کو 5 لاکھ روپے امداد ملے گی۔ کے علاقے کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کے المناک واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے جو حادثے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر جامع رپورٹ پیش کرے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کو محکمہ داخلہ کی جانب سے واقعے کی ابتدائی رپورٹ بھی ارسال کر دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حادثہ مالک مکان کی غفلت اور عمارت کی خستہ حالی کے باعث پیش آیا۔ رپورٹ کے مطابق افسوسناک واقعے میں مالک مکان کی بیٹی بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل ہے جبکہ متعدد معصوم بچے جان کی بازی ہار گئے۔ ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالک مکان اور تعمیراتی کام میں مصروف مزدوروں کو حراست میں لے کر ان کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، تاہم اب تک کی تحقیقات میں جان بوجھ کر نقصان پہنچانے یا کسی تخریبی کارروائی کے شواہد سامنے نہیں آئے۔ لاہور کے علاقے کانا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچوں کے جاں بحق ہونے کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ پولیس نے انفورسمنٹ انسپیکٹر نیشنل زون کاشف اسلم کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ FIR کے متن کے مطابق چھت پر غفلت اور لاپرواہی کے باعث کام کرنے سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ ٹیوشن سینٹر کی چھت پر مرمتی کام جاری تھا، زیادہ وزن پڑنے سے چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 14 بچے جاں بحق ہوئے۔ چھت گرنے کے حادثے میں خاتون ٹیچر سمیت 7 بچے زخمی ہوئے۔ DIG آپریشن فیصل کامران کے مطابق پولیس نے مکان مالک سمیت 5 افراد کو حراست میں لے رکھا ہے۔ تفتیش مکمل ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز لاہور کے علاقے کانا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کے افسوسناک واقعے میں 14 بچے جاں بحق جبکہ ٹیچر سمیت 7 زخمی ہوئے تھے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وسائل اور آبادی میں توازن ہی پائیدار ترقی کی ضمانت ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی سے قومی وسائل پر دباؤ بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بہبود آبادی پر اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ شرکاء کو بڑھتی ہوئی ملکی آبادی پر کنٹرول اور بہبود کے حوالے سے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وسائل اور آبادی میں توازن ہی پائیدار ترقی کی ضمانت ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی سے قومی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے جو بڑا چیلنج ہے۔ آبادی کی منصوبہ بندی کو انسانی وسائل کی بہتری سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ نیشنل پاپولیشن کونسل کا افتتاحی اجلاس جلد بلایا جائے۔ پالیسی سازوں کے لیے نیشنل پاپولیشن کونسل کا تنظیمی ڈھانچہ جلد مرتب کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم نیشنل پاپولیشن کونسل کی خود سربراہی کریں گے۔ چاروں وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور دیگر اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے۔ اسحاق ڈار کی زیر صدارت خواتین سے متعلق OIC کی 90 وزارتی کانفرنس کے انعقاد کے لیے قائم اعلیٰ سطح کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں کانفرنس کی تیاریوں کے آخری مرحلے کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان 12 اور 13 جولائی 2026 کو اس کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ اجلاس میں کانفرنس کا ایجنڈا پروٹوکول سیکیورٹی انتظامات کو زیر غور لایا گیا ہے۔ اجلاس میں لاجسٹک، میڈیا اور بین الوزارتی رابطہ کاری اور دیگر تنظیمی امور پر غور ہوگا۔ تاہم کمیٹی نے کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف اقدامات پر بھی غور کیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وزارت انسانی حقوق کی جانب سے کی گئی پیش رفت کو سراہتے ہوئے متعلقہ اداروں کو باہمی تعاون اور مؤثر رابطہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اور آپ کو خبر دیں گے وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے کوریا کی پاور کمپنی کوئن کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں پاکستان کے ہائیڈرو پاور سیکٹر میں کوریائی سرمایہ کاری اور سوات کے 2 پن بجلی منصوبوں پر گفتگو کی گئی۔ کوئن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کم من ینگ نے وفد کی قیادت کی۔ کوئن نے پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری منصوبوں کی پیش رفت اور فائنینسنگ انتظامات پر بریفنگ دی۔ کمپنی سوات میں 229 میگا واٹ عصریت کیڈم اور 238 میگا واٹ کالام عصریت ہائیڈرو پاور منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ کوئن کمپنی کے وفد کا کہنا ہے کہ منصوبوں کے لیے تقریباً $1 ارب کی فائنینسنگ کا انتظام کیا جا چکا ہے۔
वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान में कोइन की मुसलसल दिलचस्पी और सरमाया कारी के एतमाद को सराहा। जाम कमाल खान ने काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में गैर मुल्की सरमाया कारी का खैर मकदम किया। वज़ीर तिजारत ने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकार दोस्त, शफ़ाफ और मुस्तहकम माहौल के लिए पुरअज़्म। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा करने वाले मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा है कि आपने हुर्मस ईरान की सबसे बड़ी तस्वीराती ताकत है और तेहरान किसी भी सूरत इस पर अपनी खुद मुख्तारी से दस्तबरदार नहीं होगा। सरकारी मीडिया से गुफ्तगू में कालिबाफ ने अमेरिका के साथ तय पाने वाली मफाहमती यादाश्त MOU पर बात करते हुए कहा कि मुआहदे के तहत आपना हुर्मस में समंदरी खदमात की फ़ीस से सिर्फ 60 रोज़ा आरजी इस्तिस्ना दिया गया है। ताहम इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ईरान अपने मौक़िफ़ में कोई नरमी लाएगा। उन्होंने कहा कि आपना हुर्मस हमारी इलाकाई समंदरी हदूद का हिस्सा है। अमेरिका ये तासुर देने की कोशिश ना करे कि ईरान ने इस आबी गुज़रगाह को अस्करी बना दिया है। हम किसी भी कीमत पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। कालिबाफ ने आपना हुर्मस को खुदा की अता करदा नेमत और ईरान का सबसे मौसर ज़रिया ताकत करार देते हुए कहा कि इसकी इंतज़ामी और कानूनी उमूर पर ईरान और ओमान के दरमियान मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। मोहम्मद शहबाज शरीफ से सैयद कमर रज़ा, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और अफजाल भट्टी, मैनेजिंग डायरेक्टर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए फाउंडेशन के इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कौम का कीमती असासा हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी मेहनत की कमाई पाकिस्तान भेजकर ज़र मुबादला में अपना हिस्सा डालते हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए जारी मनसूबों इक़दामात में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। मुलाकात में वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बहबूद और उनको सहूलत फराहम करने के लिए मज़ीद इक़दामात का लाहे अमल भी ब्रीफिंग दी गई, और चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और MDOPF ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा कि शुमाल मगरबी सरहदी इलाके में अलैदगी पसंद गिरोह के दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई है। IRGC के मुताबिक ये गिरोह ईरान में दाखिल होकर तकरीबी और दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करने का इरादा रखता था। नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक फोर्सेस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की और सरहदी इलाके में घात लगाकर इस गिरोह को निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान गिरोह के तमाम 6 अरकान मारे गए। ख्याल रहे कि ईरान में मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में कई मुसल्लह अलैदगी पसंद गिरोह सरगर्म हैं, जिनके बारे में तेहरान अक्सर सिक्योरिटी खतरात का इल्ज़ाम लगाता है। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी पर रद्द अमल देते हुए दोनों ममालिक से मामला सिफारती तरीके से हल करने पर जोर दिया है। रूसी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुसल्लह तसादुम का खात्मा करें। रूसी वजारत खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुतनाज़ा अमूर को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से आने वाले 4 ड्रोन्स को कामयाबी से मार गिराया है। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन्स भेजे थे। पाकिस्तान के मजबूत फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने तमाम ड्रोन्स की फौरी निशानदेही की और मार गिराया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने आला पेशावराना तैयारी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के तमाम मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। सदर ट्रंप ने सितंबर में पहले मिड टर्म कन्वेंशन और अवामी जलसे का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि रिपब्लिकन पार्टी मुल्क की तारीख में पहली बार मिड टर्म कन्वेंशन मुनक़्क़िद करने जा रही है, जो 9 और 10 सितंबर को डैलस, टेक्सास में होगा। सदर ट्रंप के मुताबिक इस तारीखी सियासी इज्तिमा और बड़े अवामी जलसे में ग्रेट अमेरिकन कमबैक और उनके अमरीका फ़र्स्ट एजेंडे की कामयाबियों का जश्न मनाया जाएगा। सदर ट्रंप ने यह दावा भी किया कि ईरान को जौहरी सलाहियत से महरूम करने के लिए अमरीकी इक़दामात तेज़ी से जारी हैं, जबकि उनकी पॉलिसियों की बदौलत आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में भी वाज़ेह कमी आ रही है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की बीजिंग में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात हुई, जिसमें अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुज़ाकरात का तसलसल और जल्द जामा मुआहदा ख़ित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। अमरीका और ईरान मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद ज़रूरी है। मौजूदा जंग बंदी को सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनका कहना था कि जंग के मुकाबले में मुज़ाकरात और तसादुम के बजाय मुकालमा ही बेहतर रास्ता है। सऊदी अरब के साथ मिलकर ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और पायदार अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। इस मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करते हैं। सऊदी अरब चीन के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ख्वाह है। चीन के साथ इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान 2 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। और आपको खबर देंगे, नामालूम हैकर्स के भारतीय चैनल पर ताबड़तोड़ हमले। एक और भारतीय चैनल हैक कर लिया गया।
हैकर्स ने भारतीय न्यूज़ चैनल एबीपी न्यूज़ को हैक करके उसकी नशरियात मुअत्तल कर दी। हैकर्स ने एबीपी के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी कुरानी आयत और वीडियो दिखाई। एबीपी न्यूज़ के यूट्यूब पर 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जबकि माहाना व्यूवरशिप का अंदाज़ा 124 मिलियन है। 1998 में कायम होने वाला एबीपी न्यूज़ पहले स्टार न्यूज़ के नाम से जाना जाता था। माहिरीन के मुताबिक भारत जो आईटी गुरु होने के दावे करता है, उसके चैनल्स पर यक्के बाद दीगरे हमलों ने उसकी साइबर सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। हैकिंग के ऐसे वाक़यात ने भारत की साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ के दावों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। पर मोदी हुकूमत की गलत बयानी, बेनकाब अपोजिशन और साबिक फौजी क़यादत का शदीद गुस्सा। मोदी हुकूमत ने अपनी हसीमत छुपाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में हलाक फौजियों के साथ भी गद्दारी कर ली। भारतीय जरीदे द हिंदू के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के सच को 13 महीने तक छुपाकर फौजी जवानों की कुर्बानी का मजाक उड़ा दिया। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया शरंत का कहना था कि राजनाथ सिंह जवानों के हलाकत पर झूठ बोलकर उनकी कुर्बानियों का सरेआम मजाक उड़ाने वाला बुज़दिल निकला। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने मोदी हुकूमत को सियासी मफाद के लिए अपने फौजियों को धोखा देने वाली बदतरीन हुकूमत करार दिया। साबिक भारतीय फौजी अफसर कर्नल रोहित चौधरी के मुताबिक मोदी की हिंदुत्ववादी पार्टी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए फौज के नाम पर सियासत चमकाने का धंधा करती है। भारतीय अपोजिशन ने झूठ पर कायम मोदी हुकूमत से फौरी इक़्तिदार छोड़ते हुए माफ़ी का मुतालबा किया है। मारूफ सहाफ़ी सुजेत नायर ने इंकशाफ किया कि मोदी हुकूमत के लिए फौजी जवानों की जानें सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी हासिल करने का जरिया है। रजीम में बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान का सफ़र ख़तरनाक करार। अफगान तालिबान रजीम में अमन व अमान के हालात बदतरीन और अफगानिस्तान दिन ब दिन आलमी तन्हाई का शिकार हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने सिक्योरिटी खतरात के बाइस अपने शहरियों को अफगानिस्तान के सफ़र से सख्ती से रोक दिया है। ऑस्ट्रेलियाई महकमा खारजा एंड ट्रेड की वेबसाइट स्मार्ट ट्रैवलर पर जारी एडवाइजरी के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई शहरियों को सख्ती से मशवरा देते हैं कि अफगानिस्तान का सफ़र ना करें। अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई शहरी ज़ख्मी और हलाक हुए, गैर कानूनी तौर पर हिरासत में भी रखे गए और महकमा खारजा ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा महफूज नहीं है। हद तक कि दारुल हुकूमत काबुल भी ख़तरे से खाली नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई शहरी सयाहती, सकाफती सरगर्मियों या अहल खाना से मुलाकात के लिए भी अफगानिस्तान का सफ़र ना करें। अमरीका, बरतानिया, कनाडा समेत मुतादिद ममालिक ने अपने शहरियों पर अफगानिस्तान का सफ़र पर पाबंदी लगा रखी है। नेशनल आईजी कराची से सुरजानी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात हुई है। मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल और पुलिस और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने पर गुफ्तगू की गई। एडिशनल आईजी की ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत की फराहमी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। आपको बताएंगे कराची में बारिश से पहले ही सड़कों की खस्ता हाली ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है और अगर बारिश हो गई तो सूरत हाल मज़ीद संगीन होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ये शहर कायद कराची है, जहां बारिश से पहले ही सड़कों की हालत ऐसी है कि शहरी हर कदम पर खतरा महसूस करते हैं। जगह जगह गहरे गड्ढे और टूटी सड़कें रोजमर्रा जिंदगी को मुश्किल बना रही हैं। ये 1980 से ये डबल रोड का साइड प्लान मौजूद है कि ये 150 फीट चौड़ा रोड बनना है और अफसोस के साथ कि 1980 से आज 46-47 साल हो रहे हैं, ये 32 और 32 के दरमियान का डबल रोड नहीं बन सका। तो अभी से तकरीबन 4 महीने पहले यहाँ पे सीवरेज का इशू अभी भी बहुत है कि यहाँ पे गटर जो बने हैं इनका ना ढक्कन है ना कुछ है और ये छोटे से लाइन डाली गई है इस रोड के ऊपर। इस रोड के इतने हालात ख़राब हैं कि यहाँ ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना फायर ब्रिगेड आ सकती है, ना यहाँ से कोई गुजर सकता है। मैं अभी काम पे से आया हूँ, बाखुदा आप यकीन करो इतने खड्डों में, इतने परेशानी के अंदर यहाँ तक पहुँचा हूँ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की खस्ता हाली ने निज़ाम जिंदगी को मफलूज कर दिया है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है और शहरी रोजाना इस अजियतनाक सूरत हाल से गुजरने पर मजबूर हैं। काफी टाइम से इन पे चैम्बर ढकने नहीं है और इसमें परसों ही जो है ना एक बच्चा भी गिरा है और ये बारिश होगा मौसम आने वाला है और खुदा ना खास्ता अगर इसमें कोई डूब के मर जाए तो इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा। और इस रोड के हालात इतने ख़राब है कि यहाँ पे एम्बुलेंस भी जल्दी से नहीं आती है, जगह जगह से रोड टूटा हुआ है। टूटे में गटर भरे पड़े, आगे बारिशें होने वाली हैं, किसी को कोई ख्याल ही नहीं है, इसलिए कोई वही नहीं कि मतलब आगे आवाम गुजरती है, कोई नया आदमी गुजरता है, बोलते हैं आगे लोग कैसे लोग हैं, जाते ही नहीं किसी बात। हम लोग कई दफ़ा गए, शिकायतें की, उन लोगों को जाके बोला है, पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता।
इतना में फंड ही नहीं मिलता हमारे को। शहरियों को खदशा है कि अगर बारिश हो गई तो यही खस्ताहाल सड़कें पानी में डूबकर एक बड़े हादसे का मंजर पेश करेंगी। नाकिस निकासी आब का निजाम शहर को मजीद खतरनाक सूरत हाल की तरफ धकेल सकता है। शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर सड़कों और निकासी आब के निजाम को बेहतर बनाया जाए, वरना सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची।